You have to answer them in 15 words. Question number 2, who is an entrepreneur? And question number 3, who plays the role of an entrepreneur in a socialist country? And here comes the answers. In economic activities, producing goods, services for profit or social goals is called enterprise. Answer to second question, who is an entrepreneur? Entrepreneur is a person or innovative risk taker initiating and managing ventures, seeking profit and solving problems creatively. तो बच्चों, एक एंटरप्राइज वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो एंगेज्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे प्रोड्यूस प्रोडक्ट, दे प्रोड्यूस सर्विसेज, और उस बेसिस पे दे रन द बिजनेस, दे अर्न द प्रॉफिट एंड बेनिफिट द सोसाइटी. Entrepreneur is a person who is innovative. He creates something new every time in the form of product and services. And he's a risk taker, initiating and managing ventures. Ventures को initiate करते हैं, फिर उनको throughout manage करते हैं. Seeking profit and solving problems creatively. इस hope के साथ कि वो profit earn करेंगे, and they keep solving problems creatively one after another. A person who discovers something new is called an entrepreneur. And third question, who plays the role of an entrepreneur in a socialist country? Is the answer. Socialist entrepreneur की definition मांगी गई है बच्चों यहाँ पे. And here is the answer. State or cooperative members managing enterprises, pursuing collective welfare and economic goals. बच्चों, ऐसी organization which is run by states or cooperative members, means cooperatives चलाना, one for all and all for one, जहां पर एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं who are working on one type of salary irrespective of the position they are holding. So state or cooperative members who manage enterprises pursuing collective welfare, जो भी बेनिफिट होता है वो कलेक्टिवली सबका होता है, and it is for the sake of economic goals. Of people, those who are socialist entrepreneurs. Okay, now let's move on to next set of questions. Answer each of these questions in about 50 words. Explain any two advantages of being an entrepreneur. Explain any two disadvantages of being an entrepreneur. Differentiate between entrepreneur and entrepreneurship. And here comes the answer. Here is advantages of being an entrepreneur. Here is disadvantages of being an entrepreneur. And here is difference between entrepreneur and entrepreneurship. Though I know you know the difference, but in order to refresh your knowledge, I have made this class. Okay, let's take up question number 1. Advantages of being an entrepreneur. The first advantage is autonomy. Entrepreneurs have the freedom to make decisions and shape their business. Friends, जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है
कि एंटरप्रेन्योर्स के पास फ्रीडम होती है, ऑटोनॉमस कंपनीज चलाते हैं, किसी के दबाव में नहीं चलाते, खुद के आइडियाज पे चलाते हैं, and where they have a freedom to make decisions, freedom to go to the office, freedom to come back, freedom to generate the profits, freedom to hold the profits. तो ये ऑटोनॉमी जो है, ऑटोनॉमस जो एक फ्रीडम है इनके पास, that is the best advantage being, an entrepreneur. Second is potential for high rewards. Successful entrepreneurship can lead to substantial financial gains and personal fulfillment. और बच्चों इसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स की उम्मीद होती है, और होती भी है, उम्मीद होती है, और आप फाइनेंशियल गेन्स करते भी हैं, और पर्सनल फुलफिलमेंट दैट यू हैव स्टार्टेड द कंपनी योरसेल्फ and you have burgeoned on steadily, step by step you have taken the company to the greater heights. तो ये जो पर्सनल फुलफिलमेंट होती है, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. एक तो आप ऑटोनॉमस है, और दूसरा आपके पास सब्सटैंशियल रिवॉर्ड्स है. Second is disadvantages of being an entrepreneur. Financial risk. Entrepreneurs often invest their own capital and face financial uncertainty. अब जो रिस्क क्या है, रिस्क है रिलेटेड टू फिनेंस. आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपना काम स्टार्ट करते हैं, और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, आपको इसमें हर महीने का चेक नहीं मिलता. आर यू गेटिंग इट? लाइक जॉब्स, कभी आपको इसमें इतना पैसा मिल जाता है कि एक ही दिन में आप 10 महीने का पैसा कमा लेते हैं, और कई बार आपको 10 महीने में 1 महीने का पैसा भी नहीं मिलता. तो इट इज लाइक दिस ओनली, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी रहती है. वर्क लाइफ इम्बैलेंस होता है. द डिमांडिंग नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैन लीड टू लॉन्ग आवर्स एंड स्ट्रेस. अगर अपना काम चलाना है, एस्टैब्लिश करना है, तो आपको अपनी टेबल को, अपनी कंपनी बनाना पड़ेगा, और एंडलेस सिटिंग देनी पड़ेगी, एंडलेस आवर्स आपको काम करना पड़ेगा. तो उससे क्या होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाता है, इम्बैलेंस बन जाता है, ऑफिस में ज्यादा टाइम, घर पे कम टाइम, और स्ट्रेस आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर वर्किंग दिस हार्ड टू जनरेट प्रॉफिट्स. तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है. अब क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और डिफरेंस क्या है? एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स एंड मैनेजेस अ business venture, which entrepreneurship encompasses the entire process of identifying opportunities, creating and operating a business, and taking risks to achieve success. Entrepreneurship is a broader concept that includes the role and activities of entrepreneurs. अब बच्चों, एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो करता है, a person who starts the business, a person who initiates the business. अब इसे आप अगर आप इंग्लिश ग्रामर के बेसिस पे देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट है, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है ये वर्ब है, ये कर्म है, और जो ऑब्जेक्ट है इसका वो है एंटरप्राइज. तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया एंटरप्रेन्योर, और जिसमें वो कर्म करता है वो हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, और उसका आउटकम क्या है? एंटरप्राइज. So, an entrepreneur is an individual who initiates and manages a business. स्टार्ट भी वही करते हैं, और बिजनेस को मैनेज भी वही करते हैं. आजकल इसको एक नई टर्म दी गई है, विच इज अ सोलोप्रेन्योर, कि आप अकेले ही सब कुछ करते हैं. मैनेजेस अ बिजनेस वेंचर, while entrepreneurship encompasses the entire process. और सारा प्रोसेस, सारा कर्म, सारी एक्टिविटीज जिस प्रोसेस में आप करते हैं उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप.
while entrepreneurship encompasses the entire process of identifying opportunities, creating and operating the business, opportunities को create करना और business को operate करना, and taking risk to achieve success. आपको risk लेने पड़ते हैं success पाने के लिए. कई बार risk लेना पड़ता है of financial investment, risk लेना पड़ता है सारा दिन काम करने का, risk लेना पड़ता है वर्क लाइफ इम्बैलेंस का, रिस्क लेना पड़ता है स्ट्रेस का, रिस्क लेना पड़ता है समटाइम्स you won't get profits for a longer time, get depressed as well. So entrepreneurship is a broader concept जिसके अंदर entrepreneurs आ जाते हैं. Entrepreneurship is a broader concept that includes the role and activities of entrepreneur. So बच्चों इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आप इस प्रकार से लिखेंगे एग्जामिनेशन में. Explain the 2 advantages of being an entrepreneur, explain the 2 disadvantages of being an entrepreneur, differentiate between entrepreneur and entrepreneurship. I hope you have got the answers clearly now. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और यहां पर अब आपने आंसर करने हैं 150 वर्ड्स के अंदर. 150 टोटल हो गया आपके 150. तो 5 क्वेश्चंस है यहाँ पे और 5 क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. सेकंड इज व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एन इकोनॉमी. थर्ड इज Mehak wants to start a textile unit near Gurgaon. Discuss the commercial functions which she will require to plan and perform for the same. Explain any 4 managerial functions of an entrepreneur. Fifth, explain any 4 promotional functions of an entrepreneur. तो बच्चों जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे तो believe me on this that you are revising the whole unit on your own. And I am a firm believer that all the students, those who are preparing for entrepreneurship, they always finish off their chapters in detail, and afterwards they should take all their questions one on one. Okay, let's answer all these questions. Question number 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. So first is describe entrepreneurial functions of an entrepreneur. So entrepreneurs perform various vital functions including opportunity identification. ये सबसे important function है बच्चों. सबसे important है कि opportunity को identify करना. Second is innovation, creativity. प्रोडक्ट ऐसा बनाए, सर्विस ऐसी बनाए कि वो इनोवेटिव हो, किसी ने पहले ना बनाई हो, और अगर बनाई हो तो पहले से बेहतर हो. रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना आना चाहिए, उसके बिना बिजनेस नहीं चलता है. रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो यू शुड नो हाउ टू यूज देम प्रॉपरली, हाउ टू टेक देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रॉपरली. एंड डिसीजन मेकिंग. और अगर आप एक स्लो, वीक और पुअर डिसीजन मेकर हैं तो आप मान के चलिए कि बिजनेस इज गोइंग टू बी अ टफ प्रोजेक्ट फॉर यू. क्योंकि मतलब बिजनेस में आपको हर एक सेकंड एक डिसीजन लेना है, वेदर टू डू इट और नॉट टू डू इट, वेदर टू डू इट और नॉट टू डू इट. So if you are unable to take a decision whether to go for it, not to go for it, go for it, not to go for it, it is going to create a big problem for you. Okay. They identify market gaps, innovate products or services, take calculated risks, not always, gather resources, अपने लिए resources इकट्ठे करते हैं in one form or another, and make strategic decisions to create and manage successful business. और बच्चों, this profile is far different from the profile of people those who are into jobs.
बिकॉज बच्चों, अगर आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो जॉब्स में होता है, पर एट अ वेरी लिमिटेड लेवल. बट व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस, व्हेन यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज अ नो ऑप्शन गेम. अगर आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, यू कैनॉट सर्वाइव. दैट्स व्हाई दे आर वेरी एजाइल एंड ऑलवेज एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल टू डू वर्क. आप कहीं बॉडी लैंग्वेज देखिएगा एंटरप्रेन्योर्स की, रेडी फॉर एक्शन. ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन एन इकोनॉमी. किसी भी डेवलप्ड नेशन या फिर डेवलपिंग नेशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज मैंडेटरी. एंटरप्रेन्योर्स आर नीडेड. ओके, तो क्या जरूरत है? एंटरप्रेन्योरशिप इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट फॉस्टर्स इनोवेशन, क्रिएट्स जॉब्स. अब कितनी बड़ी बात है बच्चों कि इट सपोर्ट्स, इट असिस्ट किसको? इनोवेशन. अगर समाज में कोई नई इनोवेशन चाहिए तो उसके लिए आपको वो लोग चाहिए, दोज हु आर क्रिएटिव पीपल, दोज हु आर डूइंग समथिंग न्यू. आप पुरानी चीजों से बहुत ज्यादा देर तक यू कैन नॉट रन अ स्टेबल इकोनॉमी. ओके, उसके बाद दे क्रिएट जॉब्स, दे प्रोवाइड जॉब्स टू पीपल. लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के इंप्रूव करते हैं वो. एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट्स कंपटीशन. और जिन जिन बिजनेसेस के अंदर कंपटीशन है, आप देखिए, दोज बिजनेसेस आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. रीजन ये है कि कंपटीशन का हमेशा फायदा कस्टमर्स को होता है. If two contenders are doing competition, it is always the customers, those who get the benefit. उसके बाद entrepreneurship leads to the diversification of industries. एक के बाद एक इंडस्ट्रीज खुलती चली जाती है. एक एक entrepreneur 10-10 कंपनीज रन कर रहे हैं, which in turn reduces dependency on a single sector. और उससे होता क्या है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर पे, एक सिंगल सेक्टर पे इकोनॉमी या सरकार की डिपेंडेंसी कम हो जाती है. इतनी सारी इंडस्ट्रीज चल रही है, तो it's a good sign that the country is growing. It also contributes to the country's GDP, gross domestic product. अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अलग अलग टाइप की कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट इट इज मास प्रोडक्शन. ये नहीं कि एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं, हजारों प्रोडक्ट्स रोज बन रहे हैं. ओके, इंक्रीजेस द नेशंस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. जब नेशन की स्ट्रेंथ अंदर से बढ़ती है तो ग्लोबली जो कंट्री होता है उसकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, एंड द कंट्री स्टार्ट्स competing with other countries at all the levels, whether you talk about economic level, whether you talk about production level, whether you talk about creativity level. So this is why we require entrepreneurship or the karma of an entrepreneur for economy. Okay, question number 3. Mahak wants to start a textile unit near Gurgaon. Discuss the commercial function which she will require to plan and perform for the same. तो important question है, ये concept based question है. Let's take it up. Commercial functions for starting a textile unit. To establish a textile unit, Mahak must plan and perform various commercial functions, such as the most important one, market research, financial planning, प्रोडक्शन. भाई अगर मार्केट रिसर्च नहीं करोगे तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो मनी, टाइम, रिसोर्सेज आप अपने बिजनेस में लगाने वाले हैं वो सब फेल हो जाए, वो सब आपके किसी काम ना आए. फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसा बहुत जरूरी है काम को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए नहीं, कंटिन्यू करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए. और ये 24/7 चाहिए. ये ऐसा नहीं कि आज चाहिए और कल नहीं चाहिए, ये हमेशा ही चाहिए आप. प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अगर आप प्रोडक्शन में है तो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है. रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल आ रहा है तो आप प्रोडक्ट वैसा ही बनाए जिससे आपको प्रॉफिट्स हो. ऐसे प्रोडक्ट ना बनाए कि वो लॉसेस होने शुरू हो जाए. देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाना, उसकी पोजीशनिंग करनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज प्रोडक्ट तो आप अच्छा बना लेंगे, बट इफ इट इज वोंट बी एबल टू रीच टू योर
prospective customers, it will never get sold off. She should identify target markets. Target markets को भी identify करना है जहां पर उनके products बिक सके. Assess demand. कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की और कितनी नहीं है. भाई अगर आप 100 इस मार्केट में 100 रुपए का प्रोडक्ट बिक रहा है और आपके प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ उसमें से 5 रुपए है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि डिमांड तो बहुत है, हम बनाते रहो बिक तो जाएगी. ऐसा नहीं होता. Are you getting it? So you need to know if the demand is of 5 rupees or 10 rupees or 5% or 10%. You need to know that. Okay. Assess demand, secure funding. You have to keep funding secure. Manage the supply chain. Production होनी चाहिए. Finished products का market में पहुंचना बहुत जरूरी है. Otherwise, अगर production ऐसे किसी product की है जो with time, जिसकी shelf life expire हो जाता है, तो you need to be very, very cautious with that. Select appropriate production techniques. Production techniques needs to be agile, quick, and according to 21st century. And develop marketing and distribution channels. तो बच्चों आपको एक सिंगल पॉइंट पर कॉशियस रहना पड़ेगा. अब ये नहीं कह सकते जी मैं प्रोडक्शन तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, बट मार्केटिंग का मुझे पता ही नहीं क्या होती है, या पोजीशनिंग का मुझे पता ही नहीं क्या होता है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड. और बच्चों जब आप क्वेश्चंस के आंसर्स करते, देखिए कितनी कमाल की बात है इसमें. जब आप यूनिट पढ़ने के बाद क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं तो आपको लग पता जाता है कि where actually you are standing in form of your knowledge of the chapter. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. And we leave no stone unturned. You know about Mavericks India solution. We leave no stone unturned in order to provide you the complete detailed solution to all your questions. Okay. Next is managerial functions of an entrepreneur. बहुत important question है, बहुत important. Let's take the answer. Entrepreneurs engage in managerial functions like planning, setting goals and strategies. Planning करना बहुत important है. Failing to plan is planning to fail. बच्चों अगर आपने 1 महीना बिजनेस करना है तो एटलीस्ट आपको 1/10 टाइम तो अपना प्लानिंग में लगाना पड़ेगा. 3 दिन की प्लानिंग होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डू 30 days वर्क. तभी काम चलते हैं, अदरवाइज चले चलाए काम खत्म हो जाते हैं. If it is not there, planning is very important. Okay. Strategies बनानी है, गोल सेट करने हैं. Organizing, structuring resources. Resources होना अलग बात है. आप देखते हैं कि कई लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बट वो उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते. वेयर टू यूज व्हाट. अब आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं तो आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि पहले काम में कितना पैसा लगेगा, दूसरे काम में कितना पैसा लगेगा, तीसरे में कितना लगेगा. कलेक्टिवली जब मैं इसके बेसिस प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मुझे कितना पैसा रिटर्न आए. ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्सेज को. अदरवाइज you can have resources, but if you do not know how to use them, it is going to be a challenge for your organization. Staffing, लोगों को हायर करना और टैलेंट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट. आपको हमेशा ऐसे लोग हायर करने चाहिए who are oriented towards the vision of the company. जो आपकी विजन है उनका भी वही विजन है. कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, और जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल करना. whatsoever they are doing, keep an eye on it. Do not do micro management, और मैक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, ताकि जो भी काम आप चाहते हैं और जो भी कंपनी डिजर्व करती है आउटकम, वो लोगों के थ्रू अचीव की जाएगी. तो यू शुड वर्क ऑन इट. These functions ensure effective business operations and growth. और आप इनको जब कलेक्टिवली एक साथ करते हैं, leaving one function aside, it is going to affect your business performance. So what do you have to do? These functions ensure that effective business operations and growth when you integrate all these things together. जहां पर आप प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, स्टाफिंग भी करते हैं, फिर कंट्रोलिंग भी करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, उसका आंसर, प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. प्रमोशनल फंक्शंस इंक्लूड क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस. सबसे पहले तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो ब्रांड बन सके. ब्रांड बनने में प्रोडक्ट को कई साल लग जाते हैं. सो क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस. अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन चुका है
तो उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है जो इस टाइप का प्रोडक्ट बनाती है और इस दाम पर उसको बेचती है। एडवर्टाइजिंग उसके लिए करनी है, सेल्स प्रमोशन करनी है, एंड यू हैव टू बिल्ड इन पब्लिक रिलेशंस कि आपका माल जैसे ही आए मार्केट में, यू हैव सर्टेन डिस्ट्रीब्यूटर्स, यू हैव सर्टेन डीलर्स जो हाथों हाथ आपका माल उठा दें। Entrepreneurs need to build a positive image, आपकी इमेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसी इमेज that you are a likable person to work with। मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि बिजनेस हमेशा लाइकेबल लोगों के साथ किया जाता है। then with this you can attract more customers, differentiate their products, अपने प्रोडक्ट्स को अपने कॉम्पिटिटर से आपको अलग तरीके से बनाना है, बेटर बनाना है, ड्यूरेबल बनाना है, सस्ते दाम पर बनाना है, एंड मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी थ्रू इफेक्टिव प्रमोशनल एफर्ट्स, और अच्छे से प्रमोशन करना है। सारा बेनिफिट्स अगर कस्टमर को जाता भी है तो तब भी आप बेनिफिट में। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस बना रहे हैं कि कस्टमर्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिटेड, तो मेरी बात आज आप याद रख लीजिए 21st सेंचुरी में तब भी आप लॉस में नहीं हो, तब भी आप बेनिफिट्स में। These functions help in driving sales and expanding the business। और ये functions जब collectively अप्लाई किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ये आपकी सेल्स को और बिजनेस को एक्सपैंड करने में कंपनी की बहुत मदद करते हैं। सो बच्चों, we have taken up these 5 questions। Describe entrepreneurial functions of an entrepreneur। What is the need of entrepreneurship in the economy? Mehak wants to start a textile unit near Gurgaon। Discuss the commercial functions which she will require to plan and perform for the same। Fourth question, explain any 4 managerial functions of an entrepreneur। And fifth question, explain any 4 promotional functions of an entrepreneur। और मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं कि अगर आप इस प्रकार से अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे, you will land among the top। I'll assure you that। Okay, let's move on to part 4। Here we have 2 questions। Answer each question in about 250 words। 250 words में आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना। 250 words। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन एन इकोनॉमी। पहले भी क्वेश्चन था और अब उन्होंने मांगे हैं गिव एटलीस्ट 6 बेनिफिट्स। पे आपको 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन। Let's have a look towards the answers of these questions। Okay, the first one is the process of entrepreneurship। ये क्या प्रक्रिया क्या है, की कैसे जाती है entrepreneurship। अरे कहते हैं प्रक्रिया क्या है entrepreneurship। इस क्वेश्चन में इस आंसर को मांगा गया आपसे। अच्छा जी, पहला है द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस। पहली स्टेज क्या है, हम बात कर चुके हैं इस बारे में, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। आप सिर्फ बिजनेस खोल के बैठ गए, अब आपको ये नहीं पता कि भैया मेरे को अपना माल बेचना है तो कहाँ कहाँ मुझे जाना पड़ेगा। वो क्या है, आपके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज है। लोग फोन कॉल्स करते हैं, कोल्ड कॉल करते हैं, दिन में 100 कॉल्स करते हैं, दे विजिट पीपल, they bring orders from them, then they fulfill those orders and they take payments from there। So many things are to be need to be done। So opportunity identification is one। Entrepreneurs recognize gaps or unmet needs in the market that can be addressed with the product or service। Idea generation, they brainstorm and develop innovative ideas to fill these gaps। जो भी मार्केट में गैप्स है, उनको अनमेट नीड्स है, उनको ये पहचानते हैं और उन्हें फुलफिल करने के लिए दे क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, आइडियाज जनरेट करते हैं, ऑफन बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, स्किल्स एंड मार्केट रिसर्च। और इनका मार्केट रिसर्च बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। दे डू नॉट डू एनीथिंग विदाउट डूइंग रिसर्च ऑन इट। थर्ड इज बिजनेस प्लानिंग। एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के बारे में आप जानते हैं, हम इसे डिटेल में कर भी चुके हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितने टाइम पर अपने बिजनेस को कहां तक ले जाए, तभी कोई आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा या उसमें इंटरेस्टेड होगा। ओके, आउटलाइनिंग द कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को आउटलाइन करना है।
डीपली अंडरस्टैंड करना है हु आर द टारगेट ऑडियंस, किस तक आपका बिजनेस पहुंचेगा और कौन आपको बार बार रिपीट बिजनेस देगा, रेवेन्यू मॉडल क्या है, कितना पैसा आप चार्ज करेंगे, उसमें से कितना पैसा आपके बिजनेस या प्रोडक्शन या सर्विसेज बनाने में लगेगा और कितना आपका प्रॉफिट्स में रहेगा, ये भी आप डिसाइड करेंगे। स्ट्रेटजीज क्या है, उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है। स्ट्रेटजीज बनाना आसान है, उन्हें एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों दैट इफ यू आर मेकिंग स्ट्रेटजीज फॉर योर बिजनेस एंड यू नो हाउ टू एग्जीक्यूट देम एज। तो ये बात होगी बिजनेस प्लानिंग। हम बात करेंगे रिसोर्स एक्विजिशन की, रिसोर्सेज को एक्वायर करना। दिस स्टेप इन्वॉल्व सिक्योरिंग नेसेसरी रिसोर्सेज, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फंड्स, पैसा, इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट, सर्विसेज के लिए इक्विपमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल, लोग, स्टाफिंग। तो रिसोर्स एक्विजिशन है बच्चों। ह्यूमन कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Entrepreneurs put their plans into action by setting up the business, manufacturing products and launching marketing campaigns. और बच्चों देखिए, आपका स्ट्रेटजीज, प्लान्स, रिसोर्स एक्विजिशन, फंडिंग इकट्ठी करने का फायदा तभी है जब आप इन्हें, इन चीजों को अपने बिजनेस में लगा पा रहे हैं, चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऑलवेज एन एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन। ऑलवेज एन एक्शन सुपरसीड्स थिंकिंग एंड इंटेंशन। एक्शन हमेशा पावरफुल होता है। ओके, रिस्क टेकिंग, entrepreneurs involves, just a minute, yeah, entrepreneurs involves टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। जब आप प्लानिंग करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, फंडिंग इकट्ठी करेंगे, तो बट ऑब्वियस है आप रिस्क भी कैलकुलेटेड लेना ही पसंद करेंगे। जो कि बच्चों फिर मैं आपको बताऊंगा कि 80-20 होते हैं। 80% रिस्क कैलकुलेटेड होते हैं और 20% नॉन कैलकुलेटेड, विच में इंक्लूड फाइनेंशियल, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क। कई बार आप ज्यादा पैसा लगाकर कम कमाते हैं, कई बार आप कम पैसा लगाकर ज्यादा कमाते हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट दिस। बिजनेस इज टू स्टेप लॉस एंड वन स्टेप गेन। मैं कई बार पहले ही बता चुका हूँ। टू स्टेप लॉस कैसे, कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपको कम प्रॉफिट हुआ, तो आपको कहीं पर थोड़ा सा लॉस हुआ, बट फिर आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपको एक बार में इतना गेन हो गया कि वो पीछे के लॉसेस को कवर अप कर गया। आर यू गेटिंग इट? तो बिजनेस में यू कैन नॉट लूज योर होप्स। Adaptation. Entrepreneurs continuously adapt to changing market conditions. अब आपको मार्केट कंडीशंस को, की चेंजेस को ना अडेप्ट करना है, उसके हिसाब से ढल जाना, रिजिड नहीं रहना, स्टबन नहीं रहना। आप कस्टमर्स फीडबैक लेते रहना है और इमर्जिंग ट्रेंड्स को फॉलो करते रहना है। दौर क्या चल रहा है आपको पता हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले किसी प्रोडक्ट के लिए 450 रुपीज चार्ज कर रहे थे, अब प्रोडक्शन बहुत होगी, बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं और ये प्रोडक्ट मार्केट में आराम से 300 रुपए का मिल रहा है। आप कह रहे हैं मैं तो बेचूंगा ही नहीं जी, 450 से कम। फिर बेच लीजिए आप, ना प्रोडक्ट बिकेगा, नो बडी विल कम टू यू। हाँ, अगर आपकी क्वालिटी एक्सेप्शनल है तो इन केस लोग आ सकते हैं, अदरवाइज दे विल प्रेफर गोइंग टू पीपल दोज हु आर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट एज योर्स ऑन 300 रुपीज। सो यू हैव टू अडेप्ट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट। ओके, ग्रोथ एंड स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस सिर्फ इससे नहीं करना कि आप जॉब नहीं कर रहे और बिजनेस कर रहे हैं। बड़े ध्यान से मेरी आप बात सुनिए, दैट इफ यू आर डूइंग बिजनेस, इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ नॉट डूइंग जॉब एंड डूइंग समथिंग एल्स। बिजनेस का मतलब है ग्रोथ, बिजनेस का मतलब है स्केलिंग। तभी लोग सारा सारा दिन बिजनेस में लगे रहते हैं, ऐसे रिजल्ट नहीं आते। ओके, ग्रोथ एंड स्केलिंग। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन ग्रोइंग देयर बिजनेस, not doing business but running business, but growing the business, expanding it sorry, expanding it into the new markets and increasing profitability. बिजनेस को आगे तक लेके जाना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना इज द मेजर कंसर्न ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। लास्ट इज इनोवेशन। Continuous innovation is crucial to staying competitive and meeting evolving customers needs. और कंटिन्यूअसली आपने बीइंग एंटरप्रेन्योर्स इनोवेशन करता रहना है, कुछ नया क्रिएट करते रहना है इन ऑर्डर टू
stay in the lead, otherwise you will be out and others will take your place. Customers क्योंकि यही चाहता है. So बच्चों, the process of entrepreneurship involves opportunity identification, idea generation. Just a minute, I'll number all of them. Idea generation, business planning, resource acquisition, implementation, risk taking, adaptation, growth and scaling, and ninth is innovation. आप इस प्रकार से आंसर लिख के देखिए. I'll assure you, assure, कई बार लोग हैरान होंगे कि आपने पढ़ा किससे है. These are so important and crisp and specific answers. आप डिटेलिंग इसकी और भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन एन इकोनॉमी. अब एक किसी इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्यों और कैसे पड़ती है. इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूं इसी आज ही क्लास में, पर अब थोड़ा डिटेल में करेंगे. और इसमें उन्होंने 6 बेनिफिट्स मांगे. अरे आपको आएगा कम से कम 5 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन. अब आंसर ले लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. The process of not process, second one, yeah. The need for entrepreneurship in an economy. Entrepreneurship plays a vital role in driving economic growth and development. Here are the 6 key benefits. Entrepreneurship से बहुत बड़ा फायदा जो किसी इकोनॉमी को होता है वो होता है इकोनॉमी थ्राइव्स, फाइनेंशियली इट ग्रोज. क्या इकोनॉमी? कंट्री की इकोनॉमी. पहली बात है जॉब क्रिएशन. लोगों के पास अच्छी जॉब्स होंगी, लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, तो उसका लाइफस्टाइल, द वे ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा. Entrepreneurs starts and expand businesses, which leads to the creation of new jobs, reduces unemployment. फिर बच्चों वही बात कि कुछ ना कमाने से कुछ कमाना अच्छा है. Innovation. Entrepreneurs introduce new products, services and technologies, fostering innovation and competitiveness. ये नए products, नई services बनाते हैं जिससे innovation को support मिलता है, competition healthy होता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है इनसाइड द कंट्री, जो ग्लोबल कंपटीशन को भी चैलेंज करती है. इकोनॉमिक ग्रोथ. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है, लीडिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वेल्थ जनरेशन होता है. एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी थ्रू प्रॉफिट्स एंड एसेट क्रिएशन. एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड क्या करता है? अपॉर्चुनिटीज वेल्थ क्रिएट करने की और उसे इकट्ठा करके यूज करने की, इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग एसेट्स एंड अदर कंपनीज फॉर द सोसाइटी. तो बच्चों इससे क्या होता है, जो व्यक्ति कर रहा होता है उसके पास तो पैसा आता ही है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी होता है. अब देखिए ना, बर्फ होती है वो हिमालय के टॉप पे जमती है, ग्लेशियर्स पे जमती है, पर पिघल के नीचे आती है. तो पैसा भी उसी प्रकार होता है. कमाया बिजनेसमैन के द्वारा जाता है, ऊपर रखा जाता है और धीरे धीरे पिघल के वो समाज के अंदर ही फैलता. तो लाइकवाइज मार्केट डाइवर्सिटी. अ डाइवर्स रेंज ऑफ बिजनेसेस एनहांसेस इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल सेक्टर. अब बच्चों इतने सेक्टर्स हो गए हैं, इतनी कंपनीज हो गई हैं, इतने एंटरप्रेन्योर्स हो गए हैं दैट फ्रॉम एवरीवेयर द कंट्री इज विजुअलाइजिंग ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन. और अब किसी एक सेक्टर पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. देयर वाज अ टाइम, आई स्टिल रिमेंबर, जब 2 व्हीलर्स की एक आधी रेंज हुआ करती थी मार्केट. आज आप एक बार इंटरनेट खोल के देख लीजिए द नंबर ऑफ कंपनीज मेकिंग बाइक इन आवर कंट्री या 2 व्हीलर्स इन आवर कंट्री. एटलीस्ट यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ 10, 15, 20 कंपनीज और different ranges. Are we getting it? So this is what is happening. Market has diversified. एक कंपनी वो स्कूटर्स भी बना रही है, एक कंपनी वो बाइक्स भी बना रही है, वही कंपनी कार्स भी बना रही है. सो दे आर इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द मार्केट. वो 2 व्हीलर्स कैटर करने वाले कस्टमर्स को भी हेल्प कर रहे हैं, वो बाइक लेने वालों को भी हेल्प कर रहे हैं, वो गाड़ियां लेने वालों को भी हेल्प कर रहे हैं.
अब जो गाड़ियां बना रहे हैं वो छोटी गाड़ी बना रहे हैं, वो मिड रेंज गाड़ी बना रहे हैं, वो एसयूवीज भी बना रहे हैं, वो ईयूवीज भी बना रहे हैं। तो इतना बड़ा सेक्टर बन चुका है, और इतनी इकोनॉमिकली द कंट्री इज ग्रोइंग एंड बूस्टिंग, कि अब एक सेक्टर पे डिपेंड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही बेनिफिट है एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे तो ग्लोबली आप पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर सकते हैं। इसमें आप स्वॉट भी लगा सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। In summary, entrepreneurship is essential for economic vitality, innovation and job creation, making it a critical component of a thriving economy. So बच्चों, entrepreneurship essential है वाइटल इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, इनोवेशन के लिए। आप यू वोंट लैग बिहाइंड अदर्स इन क्रिएटिविटी। अगर आप के साथ वाला मुल्क कोई अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो आपके पास उनसे बेटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या बेटर गैजेट्स होने चाहिए, या बेटर प्रोडक्शन टेक्निक्स होनी चाहिए, बेटर स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, बेटर एजुकेशन होना चाहिए, बेटर मार्केट्स होनी चाहिए, बेटर फैसिलिटीज होनी चाहिए, लाइकवाइज मेकिंग इट अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अ थ्राइविंग इकोनॉमी। और इससे जो थ्राइविंग जो इकोनॉमी बढ़ रही होती है उसका एक क्रिटिकल पार्ट बना देती है किसको? एंटरप्रेन्योरशिप। So the need for entrepreneurship in our economy is first one for job creation, innovation, economic growth, wealth generation, market diversity, global competitiveness, and these are the 6 points. And I hope you are understanding all of them. Let's come to HOTS now, higher order thinking skills. ये आपके एग्जाम्स में नहीं आती, बट आई जस्ट विश कि आप चैप्टर को इसके बेसिस पर अच्छे से समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस एंड मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सेकंड क्वेश्चन है, इनोवेशन इज द हॉलमार्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई इज इनोवेशन रेफर्ड टू एज द बेसिक फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। थर्ड क्वेश्चन है, entrepreneurs in their drive and pursuit to create something new at times result in causing major loss to the nation natural resources. Shouldn't they be discouraged? Justify giving reasons for your answer. Starting a venture is not an easy task. A series of activities needs to be planned and undertaken to create an enterprise. Discuss them briefly. And why are entrepreneurs called agents of progress for a nation? What role do they play in nations development? So, Bacho, let's take up all these 5 questions one by one and try to answer them. The difference between entrepreneurial functions and managerial functions. अब हम पहले ले लेते हैं entrepreneurial functions कौन कौन से. It's a very important question and an answer to. अब जो पहला entrepreneurial function है वो है innovation and opportunity recognition. You know about it. Next is risk taking. You know about it. Third is resource mobilization. इसको हम ले लेते हैं. Fourth is decision making. इसे भी हम लेंगे. And third is network building. Sorry. Next is network building. पहले दो तो हम कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं resource mobilization की. In resource mobilization, they gather the necessary resources, including capital and talent, to run and to start and run the business. अब जो resource mobilization क्या है? ये word mobilize का मतलब है moving it from one place to another. अब वो क्या करते हैं कि फंड्स उनके पास होते नहीं, फंड से कलेक्ट. टैलेंट उनके पास होता नहीं, टैलेंट से कलेक्ट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस. तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास पैसा भी नहीं है, आपके पास टैलेंट भी नहीं है एंड स्टिल यू आर रनिंग इट. सो फॉर दैट यू हैव टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज. Decision making is very, very important for the entrepreneurs. Entrepreneurs make strategic decisions such as product development and market entry. और इसके अलावा भी बहुत सारे डिसीजंस हैं. ये तो ऐसे हैं जो मेजर डिसीजंस उन्हें लेने ही पड़ते हैं. प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डिसीजन और मार्केट एंट्री का, मार्केट ब्रांडिंग का, पोजीशनिंग के सारे डिसीजन को लेने पड़ते हैं. और ये कई डिसीजंस को कलेक्टिवली लेने के बाद एक डिसीजन लिया जाता है. नेटवर्किंग,
Building relationships with stakeholders, investors and partners is crucial for entrepreneurs. और वो जो entrepreneur सिर्फ एक ही प्रकार के कस्टमर को डील नहीं करता जो कंपनी के बाहर होते हैं. They also handle the customers, those who are within the company and those who are the part of the company. अब स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है. यू हैव टू वर्क इन सच अ फैशन, सच अ वे दैट एवरीबडी loves working in your company, everybody loves investing in your company. अब ऐसे काम नहीं कर सकते कि लोग आपकी कंपनी में काम नहीं करना चाह रहे तो इन्वेस्टर तो आ ही नहीं रहा है. और इन्वेस्टर्स भी तभी आएंगे आपके पास जब सही टैलेंट होगा. If you're not having talented people in the company, the investors will not come. So it is, you cannot befool everybody. Business has become a very cautious entity now. बहुत अवेयर होकर आपको करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज मैनेजरियल फंक्शन. हम देख लेते. प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. टू सेट गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप काम करें उसे ऑर्गेनाइज्ड वे में करें. हैफेजर्डली कोई काम ना करें. अगर आपके पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो उनको भी इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर रिस्ट्रिक्शन और कंस्ट्रेंट्स के टाइम पर आप उन प्रॉफिट्स को यूज कर सकें. बिजनेस इज ऑल अबाउट नोइंग योर फ्यूचर एज वेल. ओके, स्टाफिंग, हायरिंग राइट पीपल, ट्रेनिंग देम एंड मैनेजिंग एम्प्लॉयज. हायर करना आसान है, ट्रेन करना भी किसी हद तक आसान है, बट इन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल है, इनसे काम लेना बहुत मुश्किल है. दैट टेक्स हायर लेवल ऑफ स्किल्स, और हॉट सिस्टम कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. कंट्रोलिंग मैनेजर्स मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड इंश्योर एडहेरेंस टू एस्टैब्लिश प्लान्स. और जो भी कंपनी के प्लान्स हैं उनको इंप्लीमेंट कराना इज कंट्रोलिंग. लीडिंग, दे प्रोवाइड डायरेक्शंस, मोटिवेशन एंड लीडरशिप टू एम्प्लॉयज. और फिर वो इन एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं और लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं. अब बच्चों मैं आपको लीडरशिप का बड़ा अच्छा एक मीनिंग समझाता हूँ. देखिए, जब हम बात करते हैं ना लीडरशिप की, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ आपके लिए, आपको आज लीडरशिप के नए मायने समझ आ जाएंगे. कैसे ये मैनेजरियल फंक्शन है. देखिए, लीडरशिप, इसके अंदर ना 3 शब्द हैं. पहला है लीड. आपको आगे से काम करना है, चलते रहना है, लोगों को आपको फॉलो करना चाहिए, इस प्रकार का आपका काम होना चाहिए. और फिर आप बनेंगे, जनरेट करेंगे और लीडर्स. लीड, लीडर्स एंड शिप. अब शिप का क्या काम होता है कि लोगों को एक जगह से उठाता है या माल को एक जगह से उठाता है, एक किनारे से, और दूसरे किनारे तक पहुंचाता है. आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ अपनी बेहतरी का सोचते रहें, आपको लोगों की बेहतरी का भी सोचना पड़ेगा. लीडर्स आर एक्चुअली लाइक ट्रेन इंजन्स. अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थोड़ा हम डीप में जाएंगे ना तो आपको और समझ में आएगा. दे आर लाइक ट्रेन इंजन्स, जिसे हम लोकोमोटिव्स कहते हैं. लोकोमोटिव्स का काम क्या होता है? वो पहले डिब्बे को भी लेके आते हैं स्टेशन तक और लास्ट डिब्बे को भी लेके आते हैं. वो ये नहीं करते हो कि यार लास्ट डिब्बा आपने पीछे छोड़ दिया और पहले वाले डिब्बे को साथ ले आए. सो लीडरशिप टू एम्प्लॉयज भी आपको इस तरीके से दिखानी है. यू हैव टू लीड, you have to generate work for them, you have to generate environment for them, you have to pay salaries on time to them. employee welfare बहुत जरूरी है, employee involvement बहुत जरूरी है, engagement बहुत जरूरी है. and then you have to lead, you have to generate more leaders and you have to act like a ship. अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट. innovation is the hallmark of entrepreneurship. innovation के बिना entrepreneurship is nothing. क्यों? let's have a look towards this answer. Innovation is central to entrepreneurship because it drives the creation of new products. Innovation के बेस पर ही बच्चों entrepreneurs नए products बना सकते हैं, services बना सकते हैं और नई प्रक्रियाएं बना सकते हैं. प्रोडक्ट बनाने की, प्रोडक्ट को पैक करने की और प्रोडक्ट को बेचने की. इनोवेशन के बेस. क्रिएटिविटी, ये 21st सेंचुरी 5 स्किल्स में से एक है. Entrepreneurs constantly seek ways to differentiate themselves from competitors. और इनको कॉन्टिन्यूअसली अपनी स्किल्स, नॉलेज को अपग्रेड करना है इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द कंटेंडर्स, द कॉम्पिटिटर्स. इंप्रूव एफिशिएंसी, आपको एफिशिएंसी इंप्रूव करनी इन ऑल द फील्ड्स.
एम्प्लॉय वर्किंग से लेके एम्प्लॉय प्रोडक्शन, एम्प्लॉयज एनवायरमेंट और योर बिहेवियर एंड ऑल द स्टफ दैट यू आर डूइंग विद द कंपनी एंड मीट इवॉल्विंग कस्टमर्स नीड्स। और जो भी कस्टमर्स की नीड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हो ऐसे ही मीट की जा सकती है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी। इनोवेशन फॉस्टर्स ग्रोथ, इनोवेशन से सपोर्ट मिलता है ग्रोथ को, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस भी तभी बढ़ेगा जब लोग कंपनीज इनोवेटिव होंगे, मेकिंग इट अ फंडामेंटल एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन। अब बच्चों आप ऑब्जर्व कीजिए, मैं आप हम सब लोग क्रिकेट खेल भी चुके हैं, क्रिकेट देख भी चुके हैं। जो आज का क्रिकेट है और जो आज से 30 साल पहले का क्रिकेट है, बहुत डिफरेंस है। इट हैज बिकम फास्ट, इट हैज बिकम एक्यूरेट एंड यू नो लास्ट प्लेयर तक everyone is scoring runs, everyone is fielding well, everyone is taking wickets, everyone is catching, there are no misfields now। क्यों? क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी फैसिलिटीज बढ़ गई है कि आप अवेयर नहीं होंगे तो यू विल लैग बिहाइंड अदर्स, सिंपल। तो इसलिए इनोवेशन हैज बिकम अ हॉलमार्क ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल अदर सेक्टर्स टू। थर्ड क्वेश्चन, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। Let me check, this is the question. Yeah, question था, entrepreneurs in their drive and pursuit to create something new at times results in causing major loss to the nation's natural resources. Shouldn't they be discouraged? Justify giving reasons for your answers। तो इसका आंसर बच्चों मैंने लिखा है, बैलेंसिंग इनोवेशन एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। आप इनोवेशन भी कीजिए और रिसोर्सेज को वेस्ट भी मत कीजिए। अच्छा, while entrepreneurship encourages innovation, it should be carried out responsibly to minimize negative environmental fact। इनोवेशन आप करिए, प्रोडक्शन आप करिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आप करिए, बट ऐसा ना हो कि आपकी एनवायरमेंट पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट। Entrepreneurs should adopt sustainable practices and consider environmental consequences। और बच्चों जो एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, इनके अंदर एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए हम हर घर कमरे में लोगों के आजकल एक एयर कंडीशनर लगा होता है। गर्मियों में अंदर ठंडी हवा फेंकता है एयर कंडीशनर और बाहर फेंकता है गर्म हवा, वो गर्मी में एड ऑन करता है, इससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। अब सब लगाते हैं, कंपनीज कहाँ काम कर रही है इन रिसोर्स कंजर्वेशन, कि अब जो एयर कंडीशनर्स हैं उनमें से जो हीट आउटसोर्स है, हीट आउटपुट है, वो इतना नहीं निकल रहा जितना पहले निकला करता। आज आप पुराने एसीज और नए एसीज को कंपेयर कर ले तो यू विल फाइंड द डिफरेंस। और आज इन्वर्टर्स एसीज आ गए हैं, डुअल इन्वर्टर एसीज आ गए हैं, वो बिजली भी कम कंज्यूम करते हैं, कम हीट जनरेट करते हैं एंड दे आर एफिशिएंट एज। so what I'm trying to say that if this is happening, it is our sustainable goal, so everybody needs to contribute, not only the companies, even the users and the customers, they should think about। okay, discouraging entrepreneurship entirely is not necessary। आप सारा ब्लेम entrepreneurs या entrepreneurship पर नहीं डाल सकते। instead regulation and incentives can promote responsible innovation and preserving natural resources। और अगर हम प्रॉपर रेगुलेशंस को इन इफेक्ट लाएं और उनको अप्लाई करें और उसको प्रमोट करें सेंसिबली एंड रिस्पॉन्सिबली, तो इट विल प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ स्टेप्स इन स्टार्टिंग अ वेंचर। हम इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स दे चुके हैं, बहुत सारे अभी ले लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है, आइडिया जनरेशन, मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान, फंडिंग, ये तो हम कर चुके हैं। लीगल रजिस्ट्रेशन, ऑपरेशनल सेटअप, मार्केटिंग, लॉन्च एंड मॉनिटरिंग, इस पर हम काम कर लेते हैं। स्टेप्स इन स्टार्टिंग अ वेंचर। लीगल रजिस्ट्रेशन बच्चों, आपके बिजनेस का अगर वो आप सोलो नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग ऑन योर ओन, तो उसका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर द बिजनेस, ऑब्टेन लाइसेंस एंड कंप्लाई विद रेगुलेशंस। ऑपरेशन सेटअप, establish facilities, hire staff and procure equipment। Marketing, develop a market strategy to reach the customers। Launch,
introduce a product or service to the market. Monitoring, continuously assess performance and adapt as needed. अब बच्चों जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं आप उसमें से कई पॉइंट्स इस क्वेश्चन में भी डाल सकते हैं, बट यस, लीगल रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन सेटअप इज इंपॉर्टेंट, marketing is important, launching, products start, making a product and launching it is important, monitoring continuously to assess performance and adapt as needed. और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके बिजनेस में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं तो you have to bring those changes in yourself as. So this is what, the steps are needed in starting a venture. How entrepreneurs are agents of progress. Entrepreneurs are considered as agents of progress because they drive economic growth, create jobs, encourage innovation, and contribute to a nation's development. They generate wealth, diversify industries, and promote competition, leading to overall societal advancement. Their ventures stimulate investment, technology adoption, and infrastructure development, making them pivotal for nation's progress. अब बच्चों ये कैसे बनते हैं entrepreneurs, agents of progress? In all these points I have mentioned. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? They drive the economic growth. Let's take it up. जब वो किसी कंट्री में या इकोनॉमी में काम करते हैं तो ऑब्वियसली दे जनरेट जॉब्स, दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट, दे जनरेट इनोवेशन, जिससे कंपटीशन विद इन द कंट्री बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड इट विल हेल्प इन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी. सो लाइकवाइज लीडिंग ओवरऑल सोसाइटल एडवांसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें. लीडिंग टू ओवरऑल सोसाइटल एडवांसमेंट, their ventures stimulate investment, technology adoption and infrastructure development. और उनके वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट होता रहता है बिकॉज दे कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग द सोसाइटी. टेक्नोलॉजी वो नई नई अडॉप्ट करते रहते हैं तो इससे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ में ही फर्क पड़ता है और उनके बेसिस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं विच दे यूज, वेयर पीपल वर्क, एंड दिस विल हेल्प इन गेनिंग employees, favors and the favors of the customers, and making them pivotal means significant for nation's growth and progress. Now bacho we are taking last two questions and which are application based questions. और ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए है so that you can get an overview of this chapter. Shivi, a dropout from 10th standard, is forced by her mother to start working as a domestic help. Shivi agrees on the condition to do only cooking in 2 to 3 houses. One family turns out to be Punjabi, another Gujarati, and the third one is Rajasthani. Shivi एक 10th पास बच्चा है और मदर उसे कहती है कि तुम डोमेस्टिक हेल्प स्टार्ट कर दे, और शिवी कहता है कि मैं खाना बनाऊंगा 2 से 3 घरों में, जिसमें से एक घर पंजाबी है, एक गुजराती है और एक राजस्थानी है. Shivi is she's a girl. She cooked their food, kind of food for an year, and to everyone's surprise, she expressed a desire to open up a small eating joint of her own. तो शिवी ने कहा एक साल खाना बनाने के बाद कि भैया मैं तो अपना काम करूंगी. All alone determined, she finally opens अपना भोज. उसने अपना भोज करके एक ईटिंग आउटलेट खोल दिया, a small eating joint with her savings, and it became a hot spot because of fusion food platter being offered. Do you think Shivi is an entrepreneur? Give reasons for your answers. ये तो हुआ पहला क्वेश्चन अबाउट शिवी. Second question is, Karan, a rural boy, identifies the potential of organic farming in the village. He meets the zonal agriculture officer who is looking at the determination of this 20 years old, help him arrange and procure multiple resources required for his farmland. Then Karan takes a loan of 50,000 from State Bank of India, and his seed money of rupees 10,000 is not enough to cater the requirement. Karan ties up with nearby cities vegetable shop owners to sell his yield. उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया 50,000 का और साथ के वेजिटेबल शॉप ओनर से टाई अप कर लिया कि जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे उसको उन्हें बेचना है. His hard work pays and organic vegetables are a hit. This organic vegetable producer exhibits to be a good entrepreneur
with good entrepreneurial skills. Do you agree? Justify and give reasons for your answers. And here are the solutions. Shivi, yes, she's an entrepreneur. Yes, Shivi can be considered as an entrepreneur. Here are the reasons. The first reason is opportunity identification. She has done the opportunity identification that, Shivi recognized an opportunity in the market for fusion food, a unique offering that was not readily available in her locality. Second, risk taking. She took the risk taking of investing her savings and starting her own eating joint, which is the characteristic entrepreneurial trait. तो उन्होंने जो जो पैसा बचाया था उन्होंने कहा मैं रिस्क लूंगी और इस पैसे को अपने काम में लगाऊंगी, एंड देन शी स्टार्टेड हर ओन वर्क. Innovation. Shivi fusion food concept is innovative, combining different regional cuisines and create a unique menu showcasing her creativity because she has worked in a Punjabi family, Rajasthani family, and a Gujarati family. Business creation. She successfully launched and managed her eating joint, Apna Bhoj, indicating her entrepreneurial independence. Shivi's determination to open a business independently despite her initial domestic work demonstrate her, you know, entrepreneurial right. Next question about Karan. Is Karan an entrepreneur? Yes, Karan is an entrepreneur. Yes, Karan can be considered an entrepreneur with strong entrepreneurial skills. Here's why. Opportunity recognition. Karan identified the potential of organic farming in his village, highlighting his ability to spot business opportunity. Next is resource mobilization. He secured resources with the help of the agricultural office and took a loan to start his venture, demonstrating resourcefulness and financial equipment. तो इनको जब फंड्स की जरूरत पड़ी, रिसोर्सेज जरूरत पड़ी, तो इन्होंने एग्रीकल्चरल ऑफिसर से हेल्प ली, लोन लिया, एंड it proves that he is having resourcefulness and financial acumen. Risk taking, yes, Karan is a risk taker. Karan decision to take a loan and invest in organic farming involves calculated risk taking, a key entrepreneurial characteristic. Marketing and sales, yes, his collaboration with a city vegetable shop owner for distribution shows entrepreneurial skills in marketing and sales. Success. Karan's organic vegetables becoming a hit indicates his ability to execute and manage a successful business. In both the cases, Shivi and Karan displayed entrepreneurial qualities such as an opportunity identification, risk taking, innovation, and business creation, making them entrepreneurs in their respective ventures. So, बच्चों, opportunity recognition, resource mobilization, risk taking, marketing and sales, and success. In Shivi's case, opportunity identification, risk taking, innovation, business creation, independence. Literally the same points. When you integrate all these points and implement and work on them strategically, you are being considered as an entrepreneur. So Shivi and Karan, they were entrepreneurs. And these are the application-based questions from your unit 1. So, bacho, with this, we have come to the end of today's class where we have taken 6 types of questions. Questions to be answered in about 15 words, 50 words, 150 words, 250 words. Fifth one is HOTS, that is higher order thinking skills, and application-based exercise, which is the last question. So, bacho, with this, we have come to the end of today's class. I hope you have got all the questions along with their answers and you've understood them. If you have any queries, any doubts, we are always there to help you out. You just put your requirements or requisitions on your messages. So you can subscribe our more channels on the basis of these links we have shared. A presentation by Team Mavericks India Solutions. With Mavericks India, you will always gain. So until we meet next time, bye-bye for now. God bless you all. Take care. Keep learning, keep studying, keep evolving. Thank you very much.